Hi guys. So today we are starting with a new chapter that is journal entries. I know this chapter you might all have been studied many times, and many of you are very like they fear about this chapter that कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, टॉपिक्स बहुत ज्यादा इसमें होते हैं, सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, तो हमें बहुत परेशानी आती है. But to all of you, let me tell you this very clearly that this chapter holds very high importance in your accountancy, not even in 11th, but in the 12th classes as well. Because the journals is the base, as the name suggests, books of original entry. So this is the place from where we start our accounting. So there is no shortcut to learn journals. The only way to go with the journals is to go through all the concepts, to go through the theory, understanding the rules, the basic concepts, and then going forward with the practicals. So, to all those students who are taking this chapter very lightly or who are in the mood of skipping this chapter for their final exams, they are going to they are going to lose a huge number of percentage marks in their final exams, as well as they're going to struggle in their 12th accountancies chapters, because I would say 40% of 12th chapters will revolve around the journal entries. So don't take this chapter as a chapter of 8 or 10 marks. Rather, you should take this chapter as a chapter of high importance, which will be building your base of accountancy, and that is also going to help you in your higher commerce studies. So let's start with the chapter. Weightage says it is of 8 marks, but for me, this is very high importance chapter. This is one of the most important chapters in your 11th accountancy. What we are going to study in this chapter. So we'll be talking about what are original entries, how they are recorded, what are the formats, meaning of journal entries, format of journal entries, rules of journalizing, and how we deal with the different elements in the journals. So let's start. Before entering into the format of journal, uh, this is very mandatory that you all should be very well versed with all the golden rules of journals. क्या है वो golden rules? We have already studied those golden rules, and if you have not studied those golden rules, I would recommend don't watch this video further. First, you need to revise all the basic rules, the traditional approach, the modern approach of accounting of journals, and then you should go with this chapter. बेसिक रूल्स क्या थे, थोड़ा सा एक हम छोटा सा रिवीजन भी देख लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच हमें बताया गया था कि अकाउंट्स तीन कैटेगरी में डिवाइडेड होते थे. एक होता था रियल, एक होता था पर्सनल, और एक होता था नॉमिनल. रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते थे जिन्हें हम टैंजिबल और इनटैंजिबल कैटेगरीज में सब कैटेगराइज करते हैं, एंड वी फॉलो अ रूल फॉर रियल अकाउंट्स दैट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए अगर आप जर्नल्स का चैप्टर बना रहे हैं तो. ऑल्दो इस पर एक डेडिकेटेड सेशन अलग से है, तो वो सेशन भी आप देख सकते हैं पहले, और उसके बाद आप जर्नल्स पढ़ सकते हैं. इसके बाद पर्सनल अकाउंट्स में हम बात करते थे वो सारे अकाउंट्स की जो पर्सनल होते थे. इट कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स एज वेल. वहां पे हमने रूल अप्लाई किया था, डेबिट द रिसीवर, credit the giver, and nominal accounts talks about all the expenses and incomes, and the rule says that debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. तो ये बेसिक रूल्स, बेसिक मॉडर्न अप्रोच की थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए अगर आप जर्नल्स का चैप्टर बनाने बैठे हैं तो. और मॉडर्न अप्रोच ने हमें बताया कि अकाउंट्स जो है वो पांच कैटेगरी में डिवाइडेड है: एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज. And there we have only a single rule, that is will be debit all the assets, expenses and losses, and will credit all the incomes, liabilities and capital. तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक रूल्स बनाए हैं बिफोर डूइंग द जर्नल्स. तो ये आपको पता होने चाहिए. नहीं पता है तो पहले पढ़ो, उसके बाद जर्नल्स के प्रैक्टिकल्स पे आना. बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारी जगहों पे यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को बेसिक रूल्स नहीं बताए जाते हैं और डायरेक्टली जर्नल्स पढ़ा दिया जाता है. और अगर आपके जर्नल्स वीक हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि आपने वो थ्योरेटिकल पार्ट स्किप किया हुआ है. सो डेफिनेटली यू नीड टू गो बैक टू दैट थ्योरेटिकल पार्ट, जहां पे वो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो. मेरे मेरे जो सेशंस हैं आप उनको देख लीजिए,
उसके बाद आप फॉर्मेट के इस प्रैक्टिकल चैप्टर की तरफ बढ़े, तो ये ज्यादा बेटर अप्रोच है, आपके फाउंडेशन ज्यादा अच्छे से बनेंगे इससे। तो क्या है फॉर्मेट जर्नल का, वो देखते हैं। तो ये है जर्नल्स का फॉर्मेट। मेजर कॉलम्स के ऊपर पहले हम ध्यान देते हैं। तो मेजर कॉलम्स हमारे पास डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट के। डेट आपको पता ही है कि यहाँ पे हमें डेट दिखानी होती है। पर्टिकुलर्स में हम बताते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। डेबिट और क्रेडिट के जो कॉलम्स है वहां पर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट बताया जाता है। अब यहाँ पर आपको एक और कॉलम दिख रहा है, दैट इज LF, लेजर फोलियो। यहाँ पे उस लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है जहां पर ये जर्नल एंट्री लेजर में पोस्टेड होती है। अब 11th में आप बहुत इनिशियल लेवल पे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो आपको LF के कॉलम को ब्लैंक ही रखना है। आपको LF के कॉलम का भी यहाँ पे यूज नहीं होने वाला है, बट मैंडेटरी है कि आपको फॉर्मेट को ब्रेक नहीं करना है। तो आपको LF का कॉलम ड्रॉ तो करना है पर काम नहीं आने वाला है। तो ये है हमारे जर्नल्स का फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ ऊपर लिखते हैं, जर्नल्स लिखते हैं, और हमें क्वेश्चन में ट्रांजेक्शंस दिए जाते हैं। ट्रांजेक्शंस यू ऑल अंडरस्टैंड कि जो भी बिजनेस डेली ट्रांजेक्शंस करता है, एक्सचेंज करता है, बाइंग, सेलिंग, परचेजिंग, जो भी हो रहा है, उस पूरे ट्रांजेक्शन को बुक्स में नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दिया जाता है। पर हमें क्या करना है, हमें उस नॉर्मल लैंग्वेज को, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज के ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट करना है अकाउंट्स की लैंग्वेज में। तो ये पहला स्टेप होता है जहां पर हम नॉर्मल गिवन डेटा को, नॉर्मल गिवन इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में। तभी तो अकाउंट्स को एक लैंग्वेज बोला गया है। अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंट्स के खुद की वोकैबुलरी है, अकाउंट्स की खुद की ग्रामर है, अकाउंट्स के खुद के रूल्स हैं, अकाउंट्स के खुद के प्रिंसिपल्स हैं। तो अगर आपको कोई नॉर्मल ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो जर्नल्स में एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जो भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपको दिए हैं, आपको उसे कन्वर्ट करके दिखाना है इनटू जर्नल्स। आप जर्नल्स में उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसी के लिए मैं आपसे बोल रहा था कि आपको वो गोल्डन रूल्स पता होने चाहिए, रियल, पर्सनल, नॉमिनल वाले और मॉडर्न अप्रोच वाले। तभी आप कन्वर्ट कर पाते हैं ट्रांजेक्शन को जर्नल्स के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम किसी गिवन ट्रांजेक्शन को जर्नल्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे, एज आई सेड, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अगर आपको ये ट्रांजेक्शन दिया हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो हमें पहले तो हमारा टास्क है कि हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। इस ट्रांजेक्शन को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में कौन कौन से अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं। सो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, डेफिनेटली कैश अकाउंट नीड्स टू बी क्रिएटेड। एंड जब भी ओनर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करता है, तो वी डोंट ओपन ओनर्स अकाउंट, वी ओपन द कैपिटल अकाउंट। नाउ दिस इज अगेन द बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन पढ़ के कैसे अकाउंट्स बनाए जाते हैं। जैसे मैंने बोला कैश, कैश सेल्स, तो यहाँ पे दो अकाउंट क्या बनेंगे, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। गुड्स परचेज्ड, अब गुड्स परचेज्ड अगर मैं बोलूं तो गुड्स अकाउंट नहीं बनाया जाता, बजाय इसके वी हैव अ परचेजेस अकाउंट। तो व्हेनेवर वी बाय गुड्स, हम परचेजेस अकाउंट बनाते हैं। व्हेनेवर वी सेल गुड्स, हम सेल्स अकाउंट बनाते हैं। अगर ट्रांजेक्शन में किसी वेंडर का, सप्लायर का, कस्टमर का नाम नहीं दिया है, तो इट इज अज्यूम्ड कि वो कैश ट्रांजेक्शन है। तो गुड्स परचेज मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है, तो इसमें दो अकाउंट बनेंगे, परचेजेस एंड कैश। पर अगर लिखा था गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल, तो फिर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन बन जाता, और फिर हमारे लिए दो अकाउंट कौन से होते हैं, राहुल्स अकाउंट एंड परचेजेस अकाउंट। सो कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो ट्रांजेक्शन पढ़कर आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती हैं जब आपके बेसिक्स क्लियर हो। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि जर्नल्स देखने में तो बहुत आसान है, पर उन बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है जो थ्योरी या कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर करके डायरेक्टली स्किप करते हैं प्रैक्टिकल्स पे। तो पहले यू नीड टू हैव द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग द अकाउंट, कि अगर आपके सामने कोई ट्रांजेक्शन रख दिया जाए, तो आप कितने अच्छे से उस ट्रांजेक्शन के अंदर बनने वाले अकाउंट्स को बना पा रहे हैं। क्या आप ये चीज कर पा रहे हैं? जैसे मैंने बोला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या आपके दिमाग में क्लिक हुआ कि कैश अकाउंट आना चाहिए और कैपिटल अकाउंट बनना चाहिए? अगर नहीं हुआ, देन इट मींस कि अभी आपको और बेसिक्स पढ़ने की जरूरत है। तो ये ट्रांजेक्शन्स का पहला स्टेप है कि हमें ट्रांजेक्शन दिया होगा, हम उसमें से अकाउंट निकाल लेंगे। उसके बाद हम उसको कैटेगराइज करते हैं मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हम उसे डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट करने वाले हैं। जैसे मैं अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से समझाऊं, तो कैश इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन कैश। आ रहा है, इसलिए कैश को हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल पर्सनल है कि नहीं है, कैश रियल है कि नहीं है। सो कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द
रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ओनर इज गिवर। सो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कैपिटल अकाउंट और ओनर गिवर है, दैट इज वाई इसे हम क्रेडिट करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जो होता है ये वर्किंग होता है, इसे आप जर्नल्स में नहीं दिखाते। जर्नल्स में आप इस चीज को कैसे दिखाते हैं वो आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। जर्नल्स में हम इसको ऐसे दिखाएंगे कि अगर मुझे लिखना है कि कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो साथ ही साथ पहले तो मुझे जो भी ईयर है उसकी डेट्स क्वेश्चन में दी होंगी कि ट्रांजेक्शन कब हुआ। 2020 में 1 अप्रैल को हुआ, 2021 में 1 जनवरी को हुआ, जब भी हुआ क्वेश्चन आपको डेट देगा। तो ईयर फॉलोड बाय द डेट एंड मंथ, फिर आप लिखेंगे। उसके बाद रूल है कि जो अकाउंट डेबिट होता है उसे पहले लिखा जाएगा, जो अकाउंट डेबिट होता है उसे पहले लिखा जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो हमें कैश को ही पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी देखिए आप डेबिट का कॉलम पहले है और क्रेडिट का बाद में है, तो वो पहले लेफ्ट और फिर राइट की तरफ बढ़ते हैं। तो कैश अकाउंट थोड़ा सा स्पेस देना है, डी आर डॉट स्टैंड फॉर डेबिट। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि डेबिट की स्पेलिंग में आर तो है नहीं, फिर हम इसे डी आर डॉट क्यों बोलते हैं। ये डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए। आज तक अगर नहीं आया था, पूरे 11th अकाउंट्स पढ़ ली पर ये नहीं पूछा, तो फिर अकाउंट्स नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग मुझे चेक करके खुद बताएंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहां लिखेंगे टू। टू का मतलब होता है कि ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जो नीचे वाला अकाउंट है वो क्रेडिट होने जा रहा है। कौन सा अकाउंट है? टू। टू है कैपिटल अकाउंट। सो हाउ वुड वी रीड दिस? विल बी रीडिंग इट like cash account debit to capital account. So we don't use credit word for the account which is credited in the journals. हम ये नहीं बोलते कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ऐसा नहीं बुलाया जाता। इसको रीड ऐसे किया जाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो बाय डिफॉल्ट जो अकाउंट्स का होगा उसके दिमाग में जैसे ही आप बोलोगे टू कैपिटल अकाउंट, तो वो क्लिक कर जाएगा कि दैट अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द जर्नल्स। इसके बाद नीचे हमें नरेशन लिखना होता है, बिकॉज अगर मैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिख दूं और जिसको अकाउंट्स नहीं पता हो वो समझ ही नहीं सकता कि ये लिखा क्या है। तो नॉर्मल लेमैन के लिए या नॉर्मल उस ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए हमें लिखना होता है नरेशन। नरेशन क्या है? इस पूरे ट्रांजैक्शन का एक समराइज्ड वर्जन। तो हम क्या लिखते हैं? जैसे बीइंग बिजनेस started with cash, being business started with cash, this can be the narration। आप और शॉर्ट में लिखना चाहें आप और शॉर्ट में लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जितने से भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, लेट से 5 लाख से, तो कैश क्योंकि डेबिट हुआ है तो उसकी वैल्यू 5 लाख डेबिट में आती है, और कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो उसकी वैल्यू कैपिटल जो है वो क्रेडिट में आएगी। और इस तरीके से हमारी पहली जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। एक दिन में किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, और हो सकता है कि फिर एक महीने में सिर्फ 30 ट्रांजेक्शन ही हो। बट क्योंकि आप लोग 11th में पहली बार अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको हर दिन का एक ही ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा। और जर्नल्स इज अ डेली बुक, ये डेली की जर्नल है, ये डेली के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, तो आपको हर एंट्री को रिकॉर्ड करना है इसी पैटर्न में। अब एग्जाम में 30 के 30 ट्रांजेक्शन तो पूछेंगे नहीं, बहुत लेंदी हो जाएगा। इतना सब कुछ करना है आपको एक काम के लिए, एक ट्रांजेक्शन के लिए, 30 ट्रांजेक्शन के लिए इट विल टेक मोर देन 1 आवर, तो बहुत टाइम चला जाएगा आपका। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको जो भी फाइनल एग्जाम्स में आने वाले हैं, दे विल मैक्सिमम गो टू 10 ट्रांजेक्शंस। 10 से ज्यादा ट्रांजेक्शंस रेयरली पूछेंगे। हाँ, अगर पूछेंगे तो दे विल बी आस्किंग फॉर ह्यूज नंबर्स, तो 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, तब वो 10 से ज्यादा ट्रांजेक्शंस आपसे पूछ सकते हैं। बट प्रिपेयर करिए खुद को कि आपको एटलीस्ट 10 ट्रांजेक्शंस विद इन 15 मिनट्स, और आई वुड रादर से विद इन 10 to 12 मिनट्स में आपके 10 ट्रांजेक्शंस की जर्नल बन जानी चाहिए। जो बहुत शार्प बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी है, उनका तो ये टाइम 6 मिनट और 7 मिनट तक पहुंच जाता है, अगर वो बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आप भी कर सकते हैं। सो कोशिश करिए कि आप प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, और फॉर्मेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हाईली रिकमेंडेड है कि फॉर्मेट्स को नहीं छेड़ना है, प्रॉपर फॉर्मेट्स को फॉलो करना है और तभी जर्नल्स को बनाना है। तो दिस इज द पैटर्न इन विच वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस। नाउ अब हम समझते हैं कि जर्नल्स के अंदर आने वाले और जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी जर्नल्स कैसे बनाई जाती है। ठीक है, एक होते हैं सिंगल एंट्री ट्रांजेक्शंस, जैसे कि अभी हमने देखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जहां पर एक सिंगल अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक सिंगल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। बट देयर आर सम ट्रांजेक्शंस
जो कि कंपाउंड एंट्रीज कहलाते हैं, जहां पे मल्टीपल अकाउंट्स डेबिट होते हैं और मल्टीपल अकाउंट्स क्रेडिट होते हैं। मतलब कंपाउंड ट्रांजेक्शन्स, कंपाउंड एंट्रीज तब की जाती हैं जब वहां पर हमें दो से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से गुड सोल्ड फॉर कैश and half of the payment received in cash and half by check. Goods sold for cash, half payment received in cash, half payment received by check. तब आपको क्या एंट्री करनी पड़ती है? तब आपको दो अकाउंट्स को डेबिट करना पड़ेगा। एक है कैश अकाउंट, एक है बैंक अकाउंट, और फिर आप टू सेल्स अकाउंट लिख रहे होंगे। सो नाउ देयर हियर यू कैन सी कि दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, मतलब तीन अकाउंट इन्वॉल्व हो गए हैं। मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है ये एक कंपाउंड एंट्री का ट्रांजेक्शन है। लेट्स से 10,000 का पेमेंट हुआ अलग अलग मोड में एंड द टोटल सेल्स वर 20,000 रुपीज। याद रहे, आपका डेबिट और क्रेडिट हमेशा टैली होना चाहिए, नरेशन प्रॉपर होना चाहिए, और प्रॉपर ये स्पेसिंग, यहाँ पे स्पेस, ये टू, ये हर चीज यहाँ पे लिखा हुआ, हर चीज एक एक कॉमा तक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ये चीज यूज नहीं करते हैं, वैल्यूज लिखते टाइम वो कॉमा वगैरह नहीं लगाते हैं और फिर वो टेंस एंड थाउजेंड्स में कंफ्यूज होने लगते हैं। जब उनसे बोला जाता है कोई 10 लाख लिखो, तो उनको हैबिट नहीं है एंड दे विल कीप ऑन काउंटिंग द जीरोस, जिसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज ये हैबिट डालिए कि अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख रहे हैं तो उसे ब्रेक करिए टेंस में, थाउजेंड्स में, लैक्स में, कॉमा लगा लगा के सेपरेट कर लीजिए, तो आप जल्दी वैल्यूज लिख पाएंगे, इससे आपका टाइम बचेगा। एंड यू नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड एज वेल। आपको हो सकता है कि जर्नल्स बनता हो, पर देर आर हाई चांसेस कि आपके स्कूल में आने वाला पेपर इतना लेंदी हो कि आप पेपर छोड़कर आ जाए। और ये होता है, 10 में से 7 बच्चे, 8 बच्चे अपना पेपर छोड़ देते हैं। उसके पीछे यही रीजन है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस नहीं करते तो स्पीड नहीं होती, और जब स्पीड नहीं होती, पहली बार जाते हैं एग्जाम में, लाइंस खींचते रहते हैं, लाइंस ड्रॉ करने में टाइम लग जाता है। यू हैव टू ड्रॉ द लाइंस, स्केल से कभी लाइन खींची नहीं, 9th 10th के बाद आपने स्केल्स यूज नहीं किए हैं, तब एकदम से आपको जब स्केल पेंसिल पकड़ाई जाती है तो आपका ब्रेन जो है उस चीज के लिए प्रोग्राम्ड नहीं होता कि लाइन सीधी आ रही है कि नहीं आ रही है। कहीं कुछ कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम कभी इतना छोटा बना दिया, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बड़े बना दिए। तो ये सारी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं जो डेफिनेटली आएंगी अगर आप पहली बार एग्जाम में लिखने जाएंगे। उससे पहले आपको बहुत सारा ट्रायल रन करना होगा, ड्राई रन करना होगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाए। ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। तो ये है कंपाउंड एंट्रीज, जिनका मतलब है कि ट्रांजैक्शन के अंदर एक नहीं, दो नहीं, दो से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। दो तो आएंगे ही आएंगे बेर मिनिमम, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट के लिए हमें दो अकाउंट तो चाहिए चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम है। दो से ज्यादा अकाउंट जब इन्वॉल्व हो जाए, एक और एग्जांपल देखो कि अगर मैंने बोला कि आई हैव पेड सैलरीज, आई हैव पेड वेजेस इन कैश, तो मेरा सैलरी अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, वेजेस अकाउंट भी डेबिट हो रहा है टू कैश। सैलरी और वेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट होंगे, कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। इस एंट्री का क्या लॉजिक था? कैश और बैंक का डेबिट होना, क्या क्या पर्पस था? क्योंकि कैश में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और देन बैंक इज आर रिसीवर, so we say debit the receiver, तो our bank is receiving, or you can say the business account is receiving, इसलिए डेबिट हो रहा है, तो ये दोनों डेबिट होते हैं। टू सेल्स, सेल्स इज अ इनकम, दैट इज व्हाई इट इज क्रेडिटेड। तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन को हम कंपाउंड एंट्रीज का नाम देते हैं। बिल्कुल सिंपल है, लॉजिक लगाओगे, रूल लगाओगे तो आपसे बनने लगेगा। अब बात करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है डिस्काउंट्स की। ठीक है, डिस्काउंट्स। नाउ बिजनेस के अंदर दो मेजर टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं। एक है डिस्काउंट अलाउड, एक है डिस्काउंट रिसीव्ड। नॉर्मली हमने डिस्काउंट्स को ऐसे ही देखा है, बट अगर हम और पीछे जाएं तो डिस्काउंट्स को हमने और दो फर्दर कैटेगरीज में बांटा हुआ है। तो दो मेजर कैटेगरीज डिस्काउंट्स में चलती हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर, वो है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज गिवन टू प्रमोट द ट्रेड। तो अगर कोई मर्चेंट चाहता है कि उसने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या वो किसी नई कंट्री में एंटर कर रहा है, नए स्टेट में एंटर कर रहा है, नई सिटी में एंटर कर रहा है, और उसके इस नए प्रोडक्ट को अभी सेल होने में, वो गुडविल अर्न करने में टाइम लगने वाला है, तो मतलब ये वो डिस्काउंट है जो प्रमोशन ऑफ सेल्स के लिए बहुत ज्यादा यूज में लाया जाता है। तो जब कोई मैन्युफैक्चरर अपने होलसेलर्स को या होलसेलर्स अपने रिटेलर्स को प्रमोशन ऑफ ट्रेड के लिए कोई डिस्काउंट ऑफर करता है जो कि इंटरनल डिस्काउंट है, उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज एप्लीकेबल ऑन कैश सेल्स एज वेल एज क्रेडिट सेल्स। ट्रेड डिस्काउंट अकेला ऐसा डिस्काउंट है जो दोनों ही टाइप की सेल्स पे एप्लीकेबल है, दोनों ही टाइप की परचेजेस पे एप्लीकेबल है। तो अगर ट्रांजेक्शन आ जाए गुड सोल्ड वर्थ ₹1 लाख एंड अलाउड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%,
तब आपकी बुक्स में आप क्या जर्नल एंट्री बनाते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या बनाते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है, पर यहाँ पे मैंने ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट तो दिखाया ही नहीं, क्योंकि याद रहे, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट नाम का कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। दैट ऑल्सो मीन्स कि हम बुक्स में, मेजर अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते। हम माइनस जरूर करते हैं पर दिखाते नहीं हैं। यहां पर आओ, बोर्ड पर देखो ध्यान से। यहां पर मैंने 1 लाख नहीं लिखा है, कितना लिखा है? 90,000 लिखा है। कैसे आया? 1 लाख का 10% माइनस कर दिया। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 होता है। 1 लाख में से 10,000 चला गया, 90,000 बचा। तो यहाँ पे 90 ही लिखा है, बट मैंने ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट नहीं बताया। इससे बेटा ये बात याद कर लो, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता। आपको बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट नहीं दिखाना है, पर हाँ कैलकुलेट जरूर करना है, माइनस जरूर करना है। और डिस्काउंट हमेशा माइनस होते हैं, डिस्काउंट हमेशा माइनस होते हैं। इस बात को तो आप अच्छे से याद कर लो। चाहे आप परचेज कर रहे हो, चाहे आप सेल्स कर रहे हो, जब भी डिस्काउंट आएगा, किसी भी पैटर्न का ट्रांजेक्शन हो, डिस्काउंट हमेशा और हमेशा माइनस करना है। तो पहला डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट। पर जब हम दूसरे डिस्काउंट की बात करते हैं, वो है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है, एज द नेम सजेस्ट, हम चाहते हैं कि हमने जो क्रेडिट सेल्स कर दी, उसकी वजह से जो हमें बैड डेट्स होने लगे, उसको हम कम कर ले। हम प्रमोट करना चाहते हैं कि लोग हमसे सिर्फ कैश में खरीदें। तो एक ऐसा मर्चेंट, एक ऐसा वेंडर जो ये चाह रहा है कि उसको कैश सेल्स करने से फायदा हो और लोग उससे सिर्फ कैश खरीदें, ही विल स्टार्ट गिविंग अ कैश डिस्काउंट। Now, how this will work? He will offer you कि if you pay this amount right at the time of purchases or sales, I'll be giving a 10% discount to you. But if you will be asking to have credit, तो मैं आपको कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। जाहिर सी बात है, 10% का डिस्काउंट इज अ ह्यूज डिस्काउंट, और इसको सुनकर कस्टमर आपको कैश ऑन द स्पॉट देने के लिए रेडी हो जाएगा। इससे हुआ क्या? जो कस्टमर आपसे क्रेडिट मांग रहा था, वो क्रेडिट नहीं मांगेगा, उसको समझ में आ जाएगा उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए अभी के अभी पेमेंट करो और अपना 10% सेव कर लो। तो इस तरीके के जो डिस्काउंट्स हैं, जो इसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारी कैश सेल्स बढ़ जाए, हमारा कैश कलेक्शन बढ़ जाए, उनको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। एंड दीज आर द डिस्काउंट्स विच आर एक्चुअली शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यही वो डिस्काउंट है जिसकी दो कैटेगरी हम बुक्स में दिखाते हैं, एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब कैश डिस्काउंट है तो ये कॉमन सेंस की बात है कि कैश डिस्काउंट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल ऑन कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स में मत दे देना, सब गड़बड़ हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट दोनों पे चलता है, कैश डिस्काउंट नहीं चलता। कैश डिस्काउंट की ही दो कैटेगरी है, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जो कैश डिस्काउंट अलाउड है वो कब दिया जाता होगा और उसका नेचर क्या है? तो डिस्काउंट अलाउड इज ऑलवेज अ लॉस फॉर द सेलर। So when you are acting as a seller, you will be allowing the discount to the customer. But when you are buying something, then you will be receiving the discount. So discount allowed हमेशा डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है। डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, एक लॉस है, और डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है, एक सेविंग है, तो क्रेडिट होगा। इसी वजह से जब भी कोई डिस्काउंट आप डेबिट होता हुआ देखेंगे, वो इसीलिए कि आप सेलर होंगे। अगर डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है तो आप बायर होंगे। तो अगर मैं आपको एक ट्रांजेक्शन बताऊं कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश वर्थ ₹1 लाख एंड डिस्काउंट अलाउड एट द रेट ऑफ 10%, ट्रेड डिस्काउंट नहीं, कैश डिस्काउंट, तो एंट्री क्या बन रही है? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, एंड टू सेल्स अकाउंट आ रहा है। अब यहां और यहां पे आप कंपैरिजन खुद देख सकते हैं। यहां पर कोई डिस्काउंट अकाउंट नहीं है, पर यहां पर डिस्काउंट अकाउंट है। इससे यह पता चलता है कि कैश डिस्काउंट अकाउंट ही बुक्स में दिखाया जाता है। मतलब बुक्स में आने वाला डिस्काउंट अकाउंट कैश डिस्काउंट ही होगा। यू आर नॉट अलाउड टू शो ट्रेड डिस्काउंट, बट यू हैव टू रिकॉर्ड द कैश डिस्काउंट। कुछ बुक्स में से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के नाम से डेबिट करवाया जा रहा है, बट अगेन ये भी कॉमन सेंस की बात है कि अगर डिस्काउंट डेबिट हो रहा है तो वो अलाउड ही होगा, क्रेडिट हो रहा है तो रिसीव्ड ही होगा। नाउ सी द वैल्यूज। यहां पर हमने 1 लाख लिखा है, इसमें से जो हमने डिस्काउंट दिया था वो 10,000 अलग दिखा रहे हैं, और नेट वैल्यू हमें कितना मिला? 90,000, तो वो हम अलग दिखा रहे हैं। जबकि कि हमने यहां पर दोनों ही वैल्यूज को पहले ही माइनस करके नेट वैल्यू से दिखाया। यही सबसे बड़ा फर्क है एक ट्रेड डिस्काउंट में और एक कैश डिस्काउंट में।
अब देर विल बी सिचुएशंस जहां पर आपको ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों ही मिल जाए। अब अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो सीक्वेंस जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुन लो, नोट कर लो। पहले ट्रेड डिस्काउंट ही देना है, उसके बाद ही कैश डिस्काउंट देना है। अब अगर इसके अंदर आप जीएसटी का ट्रीटमेंट मुझसे जानना चाहते हो तो मैं उसके ऊपर एक अलग सेशन बना रहा हूं। तो जीएसटी को अभी हम साइड में रखते हैं, जीएसटी में मैं बताऊंगा कि डिस्काउंट्स के साथ जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या है। अभी फिलहाल हम डिस्काउंट्स को समझ लेते हैं। जो ट्रेड डिस्काउंट पहले दिया जाता है, उसके बाद जो नेट वैल्यू बचती है उसी पे कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसी ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट भी होता और फिर कैश डिस्काउंट होता, लेट से 1 लाख रुपीस की सेल है, 1 लाख रुपीस की सेल है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 10% कैश डिस्काउंट भी है। तो पहले क्या करते हैं हम, पहले तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके सेल्स में 90 ही दिखाते, 1 लाख को हटा देते, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके सेल्स अकाउंट में 90 ही दिखाते। अब 90 पे लगता कैश डिस्काउंट 10%, विच विल बी 9000। इसका 10% 9000 है, तो यहां पर हमें 81,000 लिखना पड़ता। तो दिस इज हाउ यूल बी डीलिंग विद द कैश डिस्काउंट्स एंड ट्रेड डिस्काउंट्स एज वेल। याद रहे ट्रेड डिस्काउंट्स दोनों सेल्स पे दे सकते हैं, कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश सेल्स पे देते हैं। सीक्वेंस में पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होना है, फिर जो नेट वैल्यू बचेगा उसी पे कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल है। एक और बात याद रहे, इससे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो स्टेटमेंट है वो ये होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेल हो रही है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, पर पेमेंट आधी हो रही है और उस पे कैश डिस्काउंट भी आपको देना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले सेल्स वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए। लेट से वो वैल्यू आ गई 90,000। अब इसका हाफ पेमेंट इन कैश के लिए बोला गया और हाफ ऑन क्रेडिट। तो जब आप 90 को हाफ करते हैं तो 45,000 हो जाता है। इट मींस कि अब आप 90 पे कैश डिस्काउंट नहीं देंगे, जो 45 का पेमेंट आने वाला है उस पे कैश डिस्काउंट देंगे। सो 90,000 का 45 पे जो भी कैश डिस्काउंट का परसेंटेज है, लेट से 10% है, तो 4,500 माइनस होगा। जो बाकी बचा 45,000 है जो पेंडिंग है, वो डेटर के अकाउंट में या कस्टमर के अकाउंट में एज इट इज दिखता रहेगा। तो इस तरीके के डिस्काउंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये पर्टिकुलर एलिमेंट है जो जर्नल्स के अंदर आपसे, आप किसी भी स्कूल के हो, किसी भी बोर्ड के हो, ये टॉपिक तो आना ही आना है। इसलिए इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसे नहीं छोड़ना है, डिस्काउंट्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। और बाय डिफॉल्ट अगर आप डिस्काउंट्स को प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कंपाउंड एंट्रीज की भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। The next types of transactions are the banking transactions. Now, in normal transactions, normal business, हमें पता है कि बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजेक्शन्स के अंदर, बट उन्हें जर्नल्स में कैसे डील करते हैं, तो कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन्स हैं जिनमें आपको परेशानी हो सकती है। एक बार मैं बता रहा हूं, ध्यान से नोट कर लीजिए, सुन लीजिए, तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन में आपको परेशानी नहीं होगी। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन का यहाँ पे मतलब है जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है या उस अकाउंट से ही कोई पेमेंट किया जा रहा है, देन यू विल बी कॉलिंग इट एज अ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। कोई भी चेक अकाउंट नहीं होता, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स बैंक अकाउंट से ही चलते हैं। तो इसका सिंपल सा रूल है, whenever the bank balance is increasing you will be debiting it and when your bank balance will decrease you will crediting it। मतलब ये सिंपल सा कैश की तरह ही चलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बट ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो हमने वहां पे क्या रूल पढ़ा है, डेबिट द रिसीवर। तो आर बैंक विल रिसीव, पैसा आएगा तो हमारा बैंक अकाउंट रिसीव करेगा, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा, और पैसा जाएगा तो हमारा अकाउंट पे कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इस रूल की वजह से बैंक भी बढ़ता घटता रहता है। क्या क्या ट्रांजेक्शन हैं जो हमारे बैंक को चेंज करेंगे? एनी पेमेंट मेड बाय चेक, एनी पेमेंट मेड बाय चेक, वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस पेड बाय चेक लिखा हुआ है, तो आपको एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर देना है इस तरीके से, जैसे कि आपको बोला गया वेजेस पेड बाय चेक, wages account debit to bank account whatever the value is, and put the narration also being wages paid by check। now don't ask again and again for narrations, इतनी इंग्लिश आपको आती है, आपको नरेशन में सिर्फ बीइंग वर्ड लगा के छोटा सा स्टेटमेंट फॉर्म में उसे लिख देना है। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको किसी थर्ड पर्सन से पूछने की जरूरत है, अपना दिमाग भी लगाओ कुछ कुछ बेसिक चीजों में। ये समझो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट हो रहा है। तो यहां देखिए आपका बैंक अकाउंट कम हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, दैट इज व्हाई वी आर क्रेडिटिंग द बैंक अकाउंट हियर। whenever you receive the check then there is a problem, because पेमेंट में तो हमें बैंक क्रेडिट करना है, क्लियरली पता है, पर हमें जब चेक मिलता है, so there can be two possible scenarios। one,
one situation when you have received the check and you have deposited the check on the same day. हिंदी में सुनो, अगर आपको चेक मिला और आपने सेम डे जाके डिपॉजिट कर दिया है, या ऐसा अजम्पशन है कि वो सेम डे डिपॉजिट कर दिया गया है, तभी बैंक अकाउंट डेबिट करना। एग्जाम्पल के तौर पे, गुड सोल्ड फॉर कैश, रिसीव्ड अ चेक एंड डिपॉजिटेड द चेक ऑन द सेम डे। अगर ऐसा लिखा है तभी आप बैंक को डेबिट कर सकते हो। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आपको चेक मिला और आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, सेम डे डिपॉजिट का मतलब है आपको चेक मिलेगा तो चेक ऑटोमेटिकली बैंक में तो कन्वर्ट होगा नहीं, देयर इज अ प्रोसेस, यू हैव टू गो टू द बैंक, यू हैव टू ड्रॉप द चेक। वो चेक जब बैंक में ड्रॉप होगा, ड्रॉप बॉक्स में जाएगा, वहां से वो क्लियरिंग हाउस में जाएगा, क्लियर होगा और फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है। ये प्रोसेस अगर आपने कर दिया है, जिसको हम मानते हैं कि अगर मैंने सेम डे डिपॉजिट कर दिया, ड्रॉप कर दिया, मैं बैंक चला गया, तभी मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर सकता हूं। बिकॉज आफ्टर दैट, आफ्टर ड्रॉपिंग द चेक, आई एम अश्योर्ड कि अब मुझे पैसा मिल जाएगा, मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बट वॉट इफ आपको चेक आज मिला और आप 4-5 दिन बाद डिपॉजिट करने गए, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वैलिड, क्योंकि आपको जब चेक मिला जरूरी थोड़ी है कि आपके पास उसी दिन समय हो बैंक में जाने का और चेक को डिपॉजिट करने का। अ चेक हैज अ वैलिडिटी ऑफ 3 मंथ्स। आप उस चेक को अपने पास रख के घूम सकते हो, आपको जब फुर्सत मिले आप तब चले जाओगे। आपने सोचा मैं 1 महीने बाद बैंक जाने वाला हूं, सारे चेक्स को कलेक्ट करूंगा, एक साथ डालकर आ जाऊंगा। तो क्या आप 1 महीने तक एंट्री नहीं करेंगे? क्या 1 महीने तक आने वाले चेक्स को कहीं नहीं लिखा जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा, ये तो फ्रॉड हो जाएगा, हमारा पूरा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ब्रेक हो जाएगा। तो क्या करेंगे इससे बचने के लिए? क्या करना है इससे बचने के लिए? करना है हमें एक स्पेशल अकाउंट बनाना है जिसका नाम है चेक्स इन हैंड। तो अगर मान लो किसी से चेक मिला पर आपने अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, किसी और दिन डिपॉजिट किया है, तो पहले जिस दिन आपको चेक मिलेगा उस दिन आपकी बुक्स में एंट्री होगी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, मान लेते हैं हमें राम से चेक मिला तो टू राम्स अकाउंट। तो मैंने क्या बताया अभी, अगर चेक सेम डेट चला गया है बैंक में तभी बैंक अकाउंट डेबिट करना है, पर अगर वो मिला किसी और दिन है और डिपॉजिट किसी और दिन हुआ है, तब आपको चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट करना है, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट करना है। ध्यान से सुनो, ये दो ऐसे पार्ट हैं जहां पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर आते हैं। अब आपको कैसे पता चलता है कि मैंने बैंक में सेम डे डिपॉजिट कर दिया या नहीं कर दिया? ये एक वैलिड डाउट होगा। वैसे पता चलेगा बेटा कि अगर आपको चेक मिला है पर पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं है कि वो चेक बैंक में गया है या नहीं गया है, तब आपका अजम्पशन है कि वो चेक उसी दिन चला गया। पर अगर आपको चेक मिला 5 जनवरी को और फिर 10 जनवरी को लिखा गया है द चेक रिसीव्ड ऑन 5 जनवरी वॉज डिपॉजिटेड, या इनडायरेक्टली हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हम 10 जनवरी को वही वाला चेक डालने जा रहे हैं जो हमें पहले मिला हुआ है, तब वो केस नंबर 2 है। तो 5 जनवरी को चेक्स इन हैंड टू बैंक होगा, और जब आप चेक्स इन हैंड टू डेटर होगा या कस्टमर होगा, और जब आप वो चेक बैंक में डिपॉजिट करने जाएंगे तब आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। तो इससे यह पता चलता है कि हमें चेक मिला किसी और दिन और फिर हमने बैंक में उसे डिपॉजिट कर दिया जिस दिन वो चेक जाना चाहिए था, जिस दिन हमने उसे बैंक में डिपॉजिट किया। तो ये है आपके मेजर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इसके अलावा अगर बैंक आपके अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट डाल रहा है, कोई इनकम क्रेडिट कर रहा है, तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। तो यूल राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट। अगर बैंक कुछ चार्जेस निकाल लेता है तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाता है, तो राइट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट और चार्जेस अकाउंट डेबिट और कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो वो जो नॉर्मल बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो तो ठीक है। जो एक कोर पार्ट है वो है चेक्स वाला, और वो भी चेक रिसीव होने वाला। तो ध्यान रहे, चेक अगर सेम डे मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मिला किसी और दिन और डिपॉजिट किसी और दिन हुआ है तो आपको ध्यान से ये दो अलग अलग एंट्रीज करनी पड़ेंगी, तभी आप सही कर पाएंगे। नरेशंस आपको अपने दिमाग से लिख लेने हैं। हाँ, अगर मान लो किसी का चेक डिसऑनर हो गया, किसी का चेक डिसऑनर हो गया मतलब चेक बाउंस हो गया, हमने चेक बैंक में डाला पर वो चेक रिवर्स हो गया, ये भी तो हो सकता है। कई बार हमें ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो हमें फेक चेक्स दे देते हैं, गलत चेक्स दे देते हैं, उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं है फिर भी चेक दे देते हैं। तो अगर ऐसा कोई चेक है जो रिवर्स हो रहा है, तो चाहे वो सेम डे वाला चेक हो या चेक्स इन हैंड वाला केस हो, हर केस की
डिसऑनर की एंट्री तो यही होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट, जिसका चेक था उसका नाम डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही होती है डिसऑनर की एंट्री। डेटर का मतलब है द नेम ऑफ द पर्सन हुज चेक इज गेटिंग डिसऑनर्ड, राम श्याम राहुल मोहन सुरेश अली सद्दाम सैयद जोसफ, जो भी पर्सन है जिसका जो भी नाम है वही नाम डेबिट करना टू बैंक। और ये ध्यान मत लगाना, ये दिमाग मत लगाना कि ये चेक वो वाला केस था, सेम डे वाला या अदर डे डिपॉजिट वाला केस था। नहीं, ऐसा नहीं करना है, सिंपल रखना है। ठीक है, तो यही है मेजर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जर्नल्स इज द ओपनिंग एंट्री। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में, अगर आपको एग्जाम में जर्नल्स का क्वेश्चन आएगा तो ओपनिंग एंट्री से ही क्वेश्चन शुरू होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिए, और बहुत सिंपल भी है, कुछ टेक्निकल नहीं है, बहुत सिंपल है। ओपनिंग एंट्रीज आर दोज एंट्रीज विच आर डन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जिसका पर्पज होता है पिछले साल के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना इन द करंट ईयर। इसके लिए हम एक सिंपल सी एंट्री पास करते हैं। हमें क्वेश्चन में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पैराग्राफ वाइज या जिस भी पैटर्न में, टेबल के फॉर्मेट में या पैराग्राफ के फॉर्मेट में वो हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज देते हैं, हमें वन बाय वन सारे एसेट्स को उठाकर लाइन से डेबिट कर देना है। जितने भी एसेट्स हैं उनको हमें लाइन से डेबिट कर देना है, जैसे कि बिल्डिंग है, मशीन है, डेटर्स है, कैश है, बैंक है, जितने भी एसेट्स हैं आप लाइन से उन्हें डेबिट कर देंगे। उसके बाद आपके पास जितनी भी लायबिलिटीज क्वेश्चन में दी हुई हैं उन्हें भी आप लाइन से क्रेडिट कर देंगे। सो इट विल बी ह्यूज एंट्री, लॉन्ग एंट्री, अगर मल्टीपल आइटम्स है तो काफी बड़ी एंट्री बनती है। तो लाइन से सारे एसेट्स को डेबिट टू ऑल द लाइबिलिटीज वन बाय वन बाय वन। इसमें कोई ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें एसेट्स में शफल कर सकते हैं, लाइबिलिटीज में शफल कर सकते हैं, पर ध्यान रहे पहले एसेट्स और फिर लाइबिलिटीज। अब या तो आपका बैलेंसिंग जो दोनों की दोनों एंट्रीज है उनका टोटल जो है वो बैलेंस हो रहा होगा, मतलब ये कि डेबिट और क्रेडिट की वैल्यूज का टोटल मैच हो जाएगा। बट अगेन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए बैलेंसिंग फिगर वो मिसिंग कर देते हैं। मतलब ये कि आपका डेबिट का टोटल बड़ा आ रहा होगा और क्रेडिट का टोटल छोटा आ रहा होगा, कुछ ना कुछ मिस होगा। तो अगर ऐसा बैलेंसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है, मतलब कि एसेट्स बड़े हैं और लाइबिलिटीज की वैल्यू कम है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका कैपिटल निकल कर आने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपको कैपिटल निकालना पड़ेगा प्लस माइनस करके, जो आपका नेट बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैपिटल कहलाता है। तो इस तरीके की ओपनिंग एंट्रीज भी आपको जर्नल्स में पूछी जाती हैं। पर्पस क्या है ओपनिंग एंट्रीज का? टू पास ऑन द प्रीवियस ईयर्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज इनटू द करंट ईयर बुक्स। सिंपल सा फॉर्मेट है, डेबिट ऑल द एसेट्स, क्रेडिट ऑल द लायबिलिटीज, चेक फॉर द टोटल, इफ द टोटल इज गेटिंग टैलीड तब तो कोई इशू नहीं है, बट अगर बैलेंस आ रहा है और क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो वो कैपिटल की होगा। नो, देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि आपका एसेट साइड शॉर्ट हो जाए। एसेट साइड शॉर्ट हो जाए तो हम बैलेंसिंग फिगर गुडविल लिखते हैं, पर 11th लेवल पे आपको गुडविल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। अगर आ गए तो मैंने बता दिया है, आप इसे कर सकते हैं। नरेशन इसका यही होगा, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। तो यही है हमारी ओपनिंग एंट्री। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ ये स्पेशल ट्रांजेक्शन्स भी हैं, स्पेशल सिचुएशंस हैं जहां पर हमें और जर्नल एंट्रीज पूछी जाती हैं, जैसे कि एक है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है जब कोई डेटर आपका पेमेंट करने से मना कर दे। सो बैड डेट इज अ लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बैड डेट लॉस है तो ये हमेशा डेबिट होगा। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु वाज ओइंग अस 10,000 रुपीज, नाउ ही हैज बिकम इनकरप्ट, बैंक करप्ट और इंसॉल्वेंट। ऐसा करके कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है और बोला जाता है कि कुछ पैसा आपको रिकवर हो रहा है और कुछ नहीं रिकवर हो रहा है। तो जितना भी रिकवर हो रहा है वो हम कैश अकाउंट डेबिट करके उसमें दिखा देंगे, जो रिकवर नहीं हो पाया वो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट में चला जाएगा, एंड टू कस्टमर्स अकाउंट, जो भी कस्टमर रहा। तो बैड डेट्स और कैश हमेशा डेबिट होंगे, और बैड डेट्स के जितने भी ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेंगे वो इसी तरीके के मिलेंगे कि कोई अमाउंट होगा, किसी डेटर से आपको रिकवर करना होगा, कुछ पार्ट रिकवर हो रहा होगा वो कैश में, जो पार्ट रिकवर नहीं हो रहा होगा वो बैड डेट्स में टोटल कस्टमर के अकाउंट में डाल देना है। पूरा ही पूरा अमाउंट बैड डेट हो गया तो फिर कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा। इसी का रिवर्स, कई बार पुराने बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स में लिखे गए बैड डेट्स हो सकता है आगे आने वाले सालों में रिकवर हो जाए, तो पैसा मिल रहा है, कैश आ रहा है, एंट्री क्या बनेगी? कैश। अगर कैश से दे रहा है चेक तो बैंक अकाउंट। टू
बैड डेट्स रिकवर्ड, याद रहे यहां पर आपको जिस पर्सन से पैसे मिल रहे हैं उसका नाम नहीं लिखना है, आपको बैड डेट्स रिकवर्ड ही लिखना है। ब्रैकेट में अगर आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पर अकाउंट्स में आप उस पर्सन का फिर से अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी उसका अकाउंट राइट ऑफ कर चुके हैं। थर्ड है ड्रॉइंग्स, तो ओनर कभी भी अमाउंट विथड्रॉ कर सकता है, इवन गुड्स भी विथड्रॉ कर सकता है। जब भी ओनर कुछ भी विथड्रॉ करता है तो वो हमारे लिए लॉस है। हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश विथड्रॉ हुआ तो कैश, गुड्स विथड्रॉ हुए तो परचेजेस, और अगर एसेट्स विथड्रॉ हो गए तो आप यहाँ पे एसेट्स भी क्रेडिट कर सकते हैं, जैसे मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, जो भी वो लेकर जा रहा है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होगा क्योंकि फॉर्म के लिए ये लॉस है, ड्रॉइंग्स की वजह से हमारा एसेट कम हो जाता है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टू परचेजेस और टू वट एवर थिंग ही इज टेकिंग आउट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है पहले तीन स्पेशल ट्रांजेक्शन। अब गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स जब भी कम होंगे तो याद रखिए परचेजेस को आपको क्रेडिट करना है एक्सेप्ट सेल्स। अगर गुड्स कम हो रहे हैं और वो किसी भी पर्पज से हो रहे हो तो हमें परचेजेस को ही क्रेडिट करना है, ऊपर हम जो भी रीजन होता है वो लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर सेइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, पर सिर्फ गुड्स चैरिटी के थोड़ी निकल सकते हैं, गुड्स लॉस बाय फायर भी हो सकते हैं, गुड्स गिवन एज सैंपल भी हो सकते हैं, ड्रॉइंग्स की वजह से भी हो सकते हैं। तो ध्यान रहे जो भी रीजन है, चाहे वो ड्रॉइंग्स हो, चैरिटी हो, फ्री सैंपल्स हो, आपको इन अकाउंट्स को डेबिट कर देना है और नीचे टू परचेजेस अकाउंट आ जाएगा। वाई? बिकॉज आपके गुड्स कम होंगे तो परचेजेस अकाउंट ही है जो उसे इंडिकेट करता है और परचेज अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ऊपर रीजन आप लिख देंगे, ड्रॉइंग्स है तो ड्रॉइंग्स, चैरिटी है तो चैरिटी, फ्री सैंपल्स है तो फ्री सैंपल्स भी लिख दिया जाता है। तो इस तरीके के कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन आपको और देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद है लॉस बाय फायर, इसकी भी एक सिंपल सी एंट्री बनेगी। लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, लॉस बाय एक्सीडेंट हो, कोई भी लॉस हो तो हम उस लॉस के नाम से अकाउंट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर अकाउंट, अब क्या डैमेज हुआ, अगर हमारे गुड्स डैमेज हो गए तो विल राइट टू परचेजेस, और अगर कोई एसेट डैमेज हो गया राइट टू द एसेट अकाउंट। तो लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स हो सकता है, लॉस बाय फायर ऑफ एसेट हो सकता है, लॉस बाय फायर ऑफ कैश भी हो सकता है, सो विल राइट टू कैश अकाउंट। बिल्डिंग जल गई तो टू बिल्डिंग अकाउंट, machines जल गई तो टू मशीन अकाउंट, एंड इन दिस पैटर्न यू विल पास दिस entry. The next one is purchase and sale of fixed assets. तो जिस तरीके से हमने नॉर्मल किसी भी चीज की परचेज रिकॉर्ड करनी होती है वैसे ही एसेट्स की परचेज और सेल्स रिकॉर्ड होती है। अगर आपने मशीन खरीदी तो आप लिखोगे मशीन अकाउंट डेबिट टू, कैश में खरीदी तो कैश, चेक से खरीदी तो बैंक, और किसी पर्सन से खरीदी है अभी पेमेंट नहीं की है तो उसका नाम का अकाउंट ओपन कर दिया जाता है जिसे हम वेंडर भी बुलाते हैं। तो मशीन आया तो मशीन, बिल्डिंग आई तो बिल्डिंग, लैंड आया तो लैंड, तो जो भी एसेट है जो खरीदा जा रहा है वो डेबिट होगा। रूल क्या है कि एसेट्स डेबिट होते हैं व्हेन दे आर परचेज। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमने यही पढ़ा है, रियल अकाउंट का रूल है। तो डेबिट डेबिट में हम एसेट अकाउंट लिख देंगे और नीचे अगर कैश जा रहा है तो टू कैश, चेक से पेमेंट हो रहा है तो टू बैंक, कुछ पेमेंट चेक से हो रहा है कुछ पेमेंट क्रेडिट हो रहा है तो टू बैंक भी लिखना पड़ेगा और टू वेंडर अकाउंट भी आपको लिखना पड़ेगा। वेंडर का मतलब है जिससे आपने खरीदा, अगर उसका नाम दिया है तो नाम ही लिखना, वेंडर मत लिखना। अगर नाम नहीं दिया है देन यू विल राइट द वेंडर्स अकाउंट। अगर सेल हो रहा है एसेट तो इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, कैश अगर आ रहा है तो कैश, चेक से आ रहा है तो बैंक, और अभी पैसा नहीं मिला है तो आप वेंडर लिख सकते हो, वेंडर्स अकाउंट, जो भी पर्सन है जिसको भी आप सेल कर रहे हो, टू एसेट अकाउंट, जो भी एसेट आप बेच रहे हो। और हाँ, अगर इसको बेचते टाइम कोई प्रॉफिट या लॉस हो गया तो वो भी दिखाना पड़ता है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम लिख देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में विल राइट प्रॉफिट, और लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता है, ब्रैकेट में लॉस, क्योंकि लॉस डेबिट होता है प्रॉफिट क्रेडिट होता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, रूल है। तो इस तरीके से इन कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स को हम अकाउंट्स में, जर्नल्स में डील करते हैं। इनके प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ इन सारे ट्रांजेक्शन्स की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। थोड़े से और बचे हैं वो भी बता देता हूं मैं आपको। इसके बाद है कुछ ये एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन, इनको भी देख लेते हैं। सो वेन एवर वी आर बाइंग एनी एसेट तो हमें एंट्री क्या करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और
वट एवर द मोड ऑफ पेमेंट इज। अब उस एसेट पे किए गए कोई भी खर्चा, चाहे वो इंस्टॉलेशन हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो कोई ट्रांसपोर्ट ड्यूटी हो, कुछ भी, अगर आपने बाइंग ऑफ द एसेट के टाइम पे कुछ भी एड ऑन खर्चे किए हैं, तो वो ध्यान रहे, अकॉर्डिंग टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स रूल, उसे हमें एसेट अकाउंट में ही दिखाना है। सो एनीथिंग विच इज बीन स्पेंट ऑन मशीन, सो दैट मशीन हमारे पास आ पाए, फैक्ट्री में आ पाए, इंस्टॉल हो पाए, तो मशीन पे किए गए सारे एड ऑन खर्चे मशीन अकाउंट में ही जाएंगे। दैट मीन्स इंस्टॉलेशन ऑन मशीन विल बी रिटन एज मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट नहीं लिखा जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन पेड फॉर द मशीन, तो हम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे, हम मशीन अकाउंट ही लिखेंगे। कहने का मतलब यह है, एसेट्स पे किए गए सारे खर्चे टिल द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, जब तक वो एसेट हमारे यूज में नहीं आ जाता, जिसे हम पुट टू यूज बोलते हैं, जो हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जितने भी खर्चे उस एसेट पे किए गए हैं वो उसी एसेट अकाउंट में जाएंगे। इसका बहुत ध्यान रखें। सैलरी एक्सपेंसेस, इसके अलावा बिजनेस पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जिनके हम अलग से डेडिकेटेड लेजर्स नहीं बना सकते, तो उन एक्सपेंसेस के लिए भी राइट सैलरी एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक, वट एवर द मोड ऑफ पेमेंट इज। तो ये है हमारा सैलरी एक्सपेंसेस का पार्ट। इसके अलावा सैलरी इनकम्स भी हो सकती हैं, सैलरी रिसीट्स भी हो सकती हैं, ऐसी इनकम्स, ऐसी रिसीट्स जिनके लिए अगेन हम एक डेडिकेटेड अकाउंट नहीं बनाना चाहते, छोटी मोटी इनकम्स, उनको हम दिखाते हैं कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सैलरी रिसीट्स और सैलरी इनकम्स के नाम से। वेराज आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, जो अभी हमने फाइनल अकाउंट्स में भी देखा, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो लायबिलिटी है, तो उसे एक्सपेंस अकाउंट में कैसे एडजस्ट किया जाएगा? ध्यान रहे, जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर रेंट है, सो एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कमीशन है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। तो आउटस्टैंडिंग कमीशन को यहाँ पे क्रेडिट करने का पर्पज ये है कि ये लाइबिलिटी है और इन्हें बैलेंस शीट में हमें ट्रांसफर करना है। वही अगर वो चीज प्रीपेड हो जाती है तो वो हमारे लिए एसेट है, तो एंट्री बनती है प्रीपेड एक्सपेंस टू द रेस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड रेंट है तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, अगर प्रीपेड कमीशन है तो प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इस एंट्री का पर्पस है कि हमारे पास जो एक्सपेंस हमने हमारे एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड करके रख लिए हैं, जो कि प्रीपेड हैं, जो कि फ्यूचर ईयर के लिए हैं, उनको हम एसिड बनाकर निकाल रहे हैं, एसेट अकाउंट से बाहर निकाल रहे हैं, ताकि हम उन्हें बैलेंस शीट में एसेट्स बनाकर दिखा पाए। तो यह है एंट्री आउटस्टैंडिंग की और यह है एंट्री प्रीपेड की। अक्रूड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बिल्कुल इन्हीं पैरामीटर्स पे वो भी बनते हैं, उन्हें भी देख लीजिए। जैसे कि अक्रूड इनकम है, तो अक्रूड इनकम क्या है? अगेन वो इनकम जो हमें मिल जानी चाहिए थी पर अभी तक मिली नहीं है, मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी ये सारी चीजें, फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट्स में पढ़ा है हमने। तो अक्रूड इनकम टू इनकम अकाउंट, इसका भी वही पर्पस है, इनकम्स जो है वो बाय साइड से बढ़ती हैं, ये इनकम करंट ईयर इनकम है और इसे इनकम के लेजर में क्रेडिट करना पड़ेगा, सो दैट इनकम्स जो है वो बढ़ जाए। वहीं अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, जिसे हम अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं, उसे हमें इनकम अकाउंट से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकम इस ईयर को बिलोंग नहीं करती, ये फ्यूचर ईयर की इनकम है, इसलिए ये लायबिलिटी है, इसलिए हम इसे ऐसे दिखाएंगे। तो इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। अब यहां पे भी ध्यान रहे, जो इनकम जिस कैटेगरी की है उसी के साथ ये एंट्री करनी है। जैसे कि अक्रूड रेंट, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? अक्रूड रेंट टू रेंट। वहीं अगर अनअर्न्ड रेंट होता तो रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट अकाउंट हो जाता। ये एंट्री एडजस्टमेंट एंट्रीज कहलाती हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न्ड की, और ये साल के एंड में की जाती है जब ट्रायल बैलेंस बनाया जा रहा होता है, जब हमारे पूरे अकाउंट्स को क्लोज कर रहे होते हैं। तो ये एनुअल एडजस्टमेंट एंट्रीज या क्लोजर एंट्रीज भी कहलाती हैं। एक और है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट पे लगता है तो एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, इसीलिए डेप्रिसिएशन एक लॉस है आपके लिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू आपका जो भी एसेट है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू द एसेट अकाउंट। मशीन पे डेप लगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, बिल्डिंग पे डेप लगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग एंड सो ऑन। तो डेप्रिसिएशन एक लॉस है, एक एक्सपेंस है। वैसे तो इसे नॉन कैश एक्सपेंस बोला जाता है, बट टेक्निकली डेप्रिसिएशन एक लॉस है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे एसेट्स की वैल्यूज डिक्रीज हो रही है, हमें ये कैश कहीं पे नहीं करना पड़ रहा, डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे एसेट्स डिक्रीज हो जाते हैं। तो टेक्निकली ये लॉस है और हम इसी के तहत इसे डेबिट कर रहे हैं।
ये है हमारे कंप्लीट जर्नल चैप्टर्स के कंप्लीट एलिमेंट्स। अगर आपने इनको ध्यान से प्रैक्टिस कर लिया तो आपको जर्नल्स बनने लगेगा। मैंडेटरी रूल क्या बताया मैंने कि आपको अगर इस चैप्टर को समझना है बहुत अच्छे से, आप इसकी सारी एंट्रीज बनाना चाहते हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट पे काम करें, रूल्स पे काम करें, जो भी गोल्डन रूल्स हैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हैं कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, ये सब क्या है, कैसे बनाए गए थे, क्या रूल्स हैं, पहले ये सब पढ़ें, जर्नल्स पे आए, जर्नल्स के फॉर्मेट को समझें, फिर धीरे धीरे करके उसके इलस्ट्रेशंस पिक करें, और फिर आप फुल लेंथ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े। इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो जर्नल्स पे कभी स्ट्रगल नहीं करेंगे। ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस जर्नल चैप्टर, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। जैसे कि एक ओपनिंग एंट्री मैंने आपको पहले ही बताया था, डिस्काउंट रिलेटेड एंट्रीज पे बहुत काम करिए, बैड डेट्स के ऊपर काम करिए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को बहुत ध्यान से देखिए, और एडजस्टमेंट्स में ये जो क्लोजिंग एंट्रीज की भी हम बात कर रहे थे, अक्रूड, प्रीपेड, अनअर्न्ड, ये सारे जो ट्रांजेक्शन है, तो अगर आपने इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस देके पढ़ाई कर ली, तो आपके स्कूल में जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, उसके काफी सारे ट्रांजेक्शन्स आप पहले ही प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अगर आपने इन टॉपिक्स को कर लिया है तो कहीं ना कहीं आप उस ट्रांजेक्शन को कर चुके होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, चैप्टर नंबर 1, दैट इज जर्नल्स। और जर्नल्स को कभी भी बिना थ्योरी के, बिना कॉन्सेप्ट्स के मत बनाना। अगर इस पूरे सेशन में आपको लगता है कि आपका थ्योरेटिकल पार्ट अभी वीक है, जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो रूल्स आपको नहीं पता है, तो प्लीज ये सेशन आपके साथ हमेशा रहेगा। पहले बेटा आप अपनी थ्योरी, अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर करें, उसके बाद आप जर्नल्स की इस वीडियो को ध्यान से देखें, मल्टीपल टाइम्स देखें, क्योंकि जर्नल्स एक ऐसा चैप्टर है जो 11th में और 12th में और आगे आने वाले आपके अकाउंट्स के हर ईयर में आपको बहुत हेल्प करेगा। जर्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।